नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग संबंधी 4 विधेयकों पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित करके लौटा दिया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। आइए देखते हैं इन विनियोग विधेयकों पर हुई अहम चर्चा का सारांश। Dr. K. Kesarao. Sir, I have not much to say. For a simple reason, we have this morning meeting of the opposition. We thought we would condense the entire session into very few minutes, a few hours, so that we end the entire business today. But one thing I'll say, since I have voted for the bill 370 with full understanding, at that time it was given to understand that the situation there, which was at that time existing and what we apprehended was there, the things should be normal and people would never be taken interred as is usually done in such circumstances. And few leaders were taken to jail. And at that time, I did raise the issue in this house about the release of the top leaders at least. Although Ghulam Nabi Azad Sahab has a list of lot of people who have been interned. That I don't know, 3 or 4 people I said, and we gave in writing to the President of India and to the Prime Minister that they should be released, as promised. And the promise was also that the Jammu and Kashmir, which was made into a union territory, would soon be restored to a full-fledged state. That is absolutely our full concern. When I said our, is the TRS full concern that it will have a full play to play as far as the politics are concerned. We have no grounds on 370, no on 35A or everything. But as far as the situation is concerned, we are still really concerned about it. I would only say, while saying this, the situation in Kashmir, as I see, not totally depending on what Azad Sahab has said, but situation is not as good as we wished it to be. And things are yet to be done, and they have, as in the earlier stages, as they really took off, well, they're slowing down. Something must be done to see that Kashmir is back on its feet. Sir, one thing that has attracted my attention in this regard is the report of the Chambers, sir. The Chambers has said this, since the Finance Minister is present, I am trying to bring to her notice. The report said, I will not go into the report said, Kashmir's economy had suffered, this is the latest report please, losses to the tune of around 17,878 crores in the first 120 days and continue to do so. After, that is after 22 days after August and continue to do so. It also said around 4.96 lakh jobs were lost during this period as on now. Now this is the situation. If it doesn't reflect truly, totally, even then there is some truth in this, it has to be looked into. My last appeal to the Finance Ministry is, in the name of Kashmir, J and Kashmir, 15th Finance Commission has taken away 1% from us, almost all the states here. 42% was our share, divisible pool, which has been brought down to 41% only because we want to accommodate or account for the Kashmir. And we should not suffer because you want to give more funds to Kashmir. Kashmir does deserve more funds. It should go from your exchequer and from your chester. And please try to give funds from outside and be restored 42%. Thank you very much, sir. Thank you. Shri K.K. Ragesh ji. Thank you, sir. Sir, we are discussing the demand for grants on Jammu and Kashmir amidst the outbreak of coronavirus in our country. Already 82 districts were directed to be closed, and Honorable Finance Minister is here. I am requesting the government to provide some special package
for those districts which are severely affected, and also provide free food, food grains, and also relief to the workers of those districts. I am requesting the government, the clapping alone won't work, so I am requesting the government to provide some assistance to those districts. Sir, since the abrogation of Article 370, as we all know, that the people of Jammu and Kashmir are in quarantine, the entire state was isolated. BJP member was saying here that everything is well and fine and everything is for the people of Jammu and Kashmir. If that is the case, sir, why the civil liberties were suspended? Why freedom of speech, freedom of assemble, and why all those civil liberties are suspended? Jawaharlal Nehru was saying that if there is a paradise in the world, it is this, it is this, it is this. But unfortunately, you made that paradise as a hell, and you are saying that everything is well and fine. Sir, you are claiming that the Kashmir is in normal. But in fact, people are made to be silent, and that is possible, and the silence is possible at gunpoint, and making silence of the people at gunpoint, that cannot be considered as something normalcy. So, in fact, they are trying to change the demography of the Jammu and Kashmir, as Kashmir is a Muslim majority state, and in fact, that is part of their longer agenda for converting the India into a Hindu Rashtra. Conclude. Thank you. Government is. Thank you. One more point. Thank you. One more point. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया उपसभापति महोदय। Please. बहुत चीजें सुनी। वो एक कहते हैं कश्मीर के बारे में ही, सुर्ख फूलों से लहू फूट रहा है, शायद जन्नत में आज जहन्नुम का नजारा तो देखो। मैं आपके माध्यम से, it is an appropriation bill, for appropriation bill, I stand in solidarity with the bill. But then when an entire state is appropriated, the meaning of appropriation, I think more than the financial term, it acquires a larger meaning, sir. So, my second argument is, yesterday I was told in Ladakh, ma'am, a finance minister, 13 confirmed cases of infected coronavirus cases. Kashmir has been in a lockdown before we got locked down for so many months, as a result of which many of my friends who were speaking about Kashmir having been transformed, I would want them to travel with me, although the government did not allow me to travel to Jammu and Kashmir. But then, बिहारी होने के अलावा कश्मीर से बहुत पुराना ताल्लुक है। सर, वहां के शिक्षण संस्थानों को जाकर के देखिए। मैं चाहूंगा कि सरकार, सामान्य जब सरकार बोलती है तो वो सामान्य जमीन पे दिखे, क्योंकि सामान्य का रिटॉरिक और सामान्य की रियलिटी ना तो सेब के बागानों में, ना बाजार में, ना फुटपाथ पे, ना अस्पतालों में, ना विद्यालयों में है। मैं समझता हूं तीसरी चीज सर जो मैं कहना चाहूंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी शैल बी इमीडिएटली इनिशिएटेड। सर, आंखें पथड़ा गई इंतजार करते करते। अगस्त के महीने में बात हुई थी, अभी कहां है वो इकोनॉमिक पैकेज सर? और सर, चेंबर ऑफ कॉमर्स जो वहां का है वो कहता है कि अब तक 370 के हटने के बाद 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। सर, एक आखिरी टिप्पणी करूंगा, बाइफर्केशन से डेमोग्राफी ऐसे भी हिली है वहां की सर। अब आप बात कर रहे हैं फिर से राज्य बनाने की, मैं तो अपने एलओपी के दुआओं के साथ हूं कि अगली बार ये सारी प्रक्रियाएं फाइनेंशियल कश्मीर की विधानसभा में हो। लेकिन एक बात स्मरण रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कश्मीर के मसले पे कि सर, आज ही तय नहीं हो जाता है कि आपका फैसला सही था या गलत था। इतिहास तय करेगा कि आपका फैसला सही था या गलत था, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक सेंस ऑफ एलिनेशन हो रहा है सर। किसी भी राज्य में, सूबे में अगर सेंस ऑफ एलिनेशन आता है ना, तो आप मजबूत मुल्क नहीं बन सकते सर। कोई भी देश सर लंबी चौड़ी मस्जिदों से और मंदिरों से नहीं जाना गया है, इंसानी रिश्तों से जाना चाहता है, और उस रिश्ते को हमने तोड़ी है। सुशील कुमार गुप्ता, श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। 5 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री जी ने
धारा 370 हटाई थी, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को राज्य से हटा के 2 यूटियों में बांटा था। ये कहा गया था कि लद्दाख तो परमानेंट यूटी रहेगी, परंतु जम्मू कश्मीर को जल्दी ही सामान्य हालत बना के राज्य के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। ये कहा गया था कि जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं उनको जल्द कश्मीर के अंदर पुनः अपने पुराने खेत और खलियान और पुराने मकान दिलवाए जाएंगे। ये भी कहा गया था कि सारे हिंदुस्तान के लोग अब वहां पे जाएंगे, अपनी खेती की जमीन खरीदेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, मकान बनाएंगे और दुकानें करेंगे। हालात ये है, अभी तक कश्मीरी पंडितों का जाना शुरू होना तो दूर, हिंदुस्तान के बाकी लोगों का जाना तो दूर, अभी वहीं के नेताओं कुछ नजरबंद हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने 19 और 20 का बजट 6 खरब 12 अरब 80 करोड़ लगभग इतना रखा और 20 और 21 का बजट इससे जस्ट डबल है। यह अच्छी बात है कि वहां की डेवलपमेंट हो, परंतु मैं इस चेयर के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब सामान्य हालात होंगे और कब उस यूटी को पुनः राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को कब सामान्य हालत होंगे और जो विस्थापित कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां पे विस्थापित किया जाएगा और कब देश के लोग सामान्य हालत के अंदर जम्मू कश्मीर में आने जाने लगेंगे और वहां से अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाने लगेंगे। इस मौके पर मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, लद्दाख के निवासियों के पास भूमि का अधिकार बहुत कम है। वहां के लोगों के पास खेती की भूमि बहुत थोड़ी मात्रा में है, अधिक से अधिक भूमि सरकार के पास है। मेरा आपसे निवेदन है कि बाहर के लोग नहीं जा रहे जब तक कम से कम लद्दाख के लोगों को लंबी लीज के ऊपर या स्वामित्व के आधार पे वो खेती करने का अधिकार दिया जाए। जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख बताई जाती है, वहां के पहाड़ वीरान ना रहें, वहां पर भी खेती और अच्छी फसल हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कंक्लूड कर रहा हूं सर, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो वोट की कीमत आधी कर दी गई है उन्हें पुनः पूरा करें, ताकि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले के अंदर वहां के लोग भी संविधान के दायरे में रहते हुए अपने बारे में खुद फैसला ले सकें। संसद संवाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग संबंधी 4 विधेयकों पर चर्चा अभी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग संबंधी 4 विधेयकों पर राज्यसभा में गहन चर्चा हुई। कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 370 हटाने का मामला उठाते हुए जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी बदलने की आशंका जताई, तो कुछ सदस्यों ने राज्य में बदलाव का इसे सूचक बताया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विनियोग विधेयकों पर जवाब देते हुए सभी शंकाओं का समाधान किया। आइए देखते हैं अहम चर्चा का सारांश। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात यहां पर रखी है। आज मैं आप सबके बीच में 4 स्पेसिफिक बजट की और सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट्स रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर आया हूं। और ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स for the erstwhile J&K state for the period of 1st April 2019 to 31st October 2019 ये पहली है, और दूसरी डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 2019-20
with effect from 31st October 2019. Sir, when the states were divided into union territories till 31st March 2020 for the union territory of Jammu and Kashmir. Sir, which is duly approved by the Lieutenant Governor. Sir, the third is the demand for grants for the year 2019-20 with the effect from 31st October again till 31st March for the Union Territory of Ladakh, duly approved by the Lieutenant Governor. So that this is the third, sir. So fourth is demand for grants for the year 2021 with effect from 1st April 2020 till 31st March 2021 for the Union Territory of Jammu Kashmir, duly approved by the Lieutenant Governor. सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातें यहाँ पर आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी ने कही कि ये राज्य की विधानसभा में डिस्कस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बारे में लंबा इतिहास बताया, लेकिन ये बताना भूल गए कि पहली बार नहीं, बहुत बार ये भारतीय संसद में पहले भी हो चुका है। और मैं माननीय सांसदों के ध्यान में जरूर लाना चाहूँगा कि कब कब ये हुआ और J&K का बजट एप्रोप्रिएशन बिल इस सदन में भी और लोकसभा में पहले भी चर्चा में आए। जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 5 in the year 1991 was discussed here, sir. जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन नंबर 24 बिल 1991 वो भी यहाँ पर आया। फिर दोबारा सर इन 1991 एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 46 वो भी डिस्कस हुआ। सर, जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 1992 और एप्रोप्रिएशन नंबर 10 1992 ये भी डिस्कस हुआ। सर, एप्रोप्रिएशन नंबर 19 बिल 1993 और एप्रोप्रिएशन नंबर 20 बिल 1993, एप्रोप्रिएशन नंबर 55 बिल 1993, एप्रोप्रिएशन नंबर 18 एक्ट 1994, फिर सर नंबर 19 1994 में, और फिर नंबर 47 1994 में, नंबर 14 1995 में, नंबर 15 1995 में, नंबर 35 1995 में, नंबर 13 96 में, एप्रोप्रिएशन बिल फिर 96 में। मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं पहली बार नहीं हुआ। जब आपकी सरकार भी 1991 से 96 में थी तब भी यहाँ पर डिस्कस हुआ और उस समय भी जम्मू कश्मीर का बजट यहाँ से पास किया गया था। यही नहीं सर, आपने पूछा कि अनुच्छेद 370-35 से खत्म होने के बाद क्या बदला है। एक बात तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, पहले करप्शन युक्त होता था, अब करप्शन मुक्त हुआ है, तो ये उसके बाद एक बड़ा बदलाव वहां पर देखने को मिलता है। माननीय सभापति जी, कुछ बातें यहाँ पर उठाई गई कि 4000 करोड़ की मोबिलाइजेशन कहाँ से होगी। सर, एक्साइज ड्यूटी हो, लोकल टैक्सेस हो, इंक्रीज स्टैंप ड्यूटी में हो और मोटर स्पिरिट टैक्स में इंक्रीज हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में वृद्धि हो या और भी जो हमारे टैक्सेशन है, इन सब से कुल मिलाकर 4000 करोड़ के लगभग हमारा इतना हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे और ये हमने यहाँ पर कहा भी है। और सर, एक हमने और यहाँ पर लाए हैं कि रियलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। सर, इस पे हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं चाहता था कि गुलाम नबी जी इसके बारे में ज़रूर कहते कि जो वर्षों से लंबित बिजली के बिल पेंडिंग थे, उसकी पेनल्टी और उसका इंटरेस्ट हमने पूरी तरह माफ़ कर दिया है और 3 किश्तों में इसको जमा करने के लिए हमने कहा है। इससे सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। एक बहुत बड़ी राहत हमने अपनी ओर से दी है। यही नहीं सर, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट तो बिल्कुल रुक गई है। अगर रुक गई होती तो कश्मीर का सेब कश्मीर में ही पड़ा रह जाता, मार्केट तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि अगर ज़्यादा नहीं तो जितना पिछले साल अगर कश्मीर का सेब बिका था, कम से कम उतना सब सेब इस साल भी मंडी तक पहुंचा है, तो हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है ये करने के लिए। और यही नहीं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सर जो रुके हुए थे, कई कारणों से रुके हुए थे, और वो चाहे स्टेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हों, 2800 के लगभग प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं 1165 हमने पूरे किए हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम, यहां तो B2B प्रोग्राम दूसरा होता है,
बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन ये B2V है, बैक टू विलेज प्रोग्राम, जहां पर हमने अधिकारियों को तो वहां तक पहुंचाया, भारत सरकार के अधिकतर मंत्री जम्मू कश्मीर के गांव तक स्वयं गए और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किया। और बैक टू विलेज प्रोजेक्ट में 1930 प्रोजेक्ट हमने उसमें से लगभग पूरे उसमें उठाए, और JKIDFC के माध्यम से जो लंबित समय से प्रोजेक्ट थे सर, उनमें से भी 500 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार के माध्यम से हुआ है सर। यही नहीं, इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट हमने पूरे किए और इस साल में कई और प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। सर, माननीय गुलाम नबी जी ने कहा कि 53% खर्चा सिक्योरिटी पर हो जाएगा। नहीं सर, मात्र 10% होगा सर। 38% पैसा हम लोग खर्च करने जा रहे हैं, जो आपके कैपिटल कंपोनेंट की तरफ खर्च करेंगे सर। उन्होंने एक लंबी लिस्ट उन लोगों की गिनाई जिनके ऊपर आतंकवादी हमले हुए, कईयों की जाने गई, कई घायल हुए। लेकिन आज मैं खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, जब से अनुच्छेद 370-35 से गया है, ऐसी एक भी घटना वहां पर ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किसी ने किए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए। यही नहीं सर, मार्केट इंटरवेंशन के कारण और इसके सफल प्रयोगों के कारण जो हमारे बागवान थे, उनको जो एप्पल एक्सपोर्ट हो या बेहतर मार्केट एक्सेस हो, उसके माध्यम से अच्छा रेवेन्यू भी पहले से ज़्यादा मिला है। और यही एक बड़ा कारण है इसकी सफलता का, कि जो पहले कमियां रहती थी, हमने उनको पूरी करके या दूर करके वहाँ के बागवानों को लाभ देने का काम किया, तो मोदी सरकार ने करके किया है सर। माननीय गुलाम नबी जी ने कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स की बात कही, लेकिन शायद सदन के बाकी सांसदों को ये बताना वो भूल गए कि कश्मीर में काम होता कैसे था। सर, ये बताना देश के लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कई बार घातक भी होती है, क्योंकि छवि ऐसी बाहर दी जाती है जैसे जम्मू कश्मीर के साथ ना जाने कितना भेदभाव किया जा रहा है। सर, सच्चाई तो यह है कि पहले ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली जाती थी, ना बजट में प्रावधान किया जाता था, ना उसकी वेरिफिकेशन की जाती थी, ना टेक्निकल अप्रूवल होती थी। लोग काम कर लेते थे और कहते थे कि सीएम साहब ने कहा है, यहां की मांग है, डिमांड है। सर, देश का कोई एक राज्य ऐसा बताइए जहां एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना हो, बजट में प्रावधान और टेक्निकल अप्रूवल ना हो, और अपने मन में आ गया तो एक बिल्डिंग खड़ी कर लो और बाद में कहो कि मेरे पैसा नहीं दिया गया। जब मैं स्वयं इस बार मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर गया, सर, 2 लोग मेरे पास आए, मुझे कहने लगे 30 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग बनाई, मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा बताइए कब इसका अप्रूवल हुआ, किस बजट में इसकी सैंक्शन हुई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लगा कि यहां पे इस चीज की आवश्यकता तो बना दी। सर, ये कहां होता, देश के किस कोने में होता है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, हम चेक करवाएंगे जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी, जेन्युइनली काम हुआ होगा, उसकी पेमेंट करने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन आगे से ऐसा ना हो। 5-6 अगस्त को जो बिल दोनों सदनों ने पास किया, जो अनुच्छेद 370-35 से आपने समाप्त किया, और 31 अक्टूबर को जो एक नया अध्याय जम्मू कश्मीर के लिए शुरू हुआ है, उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी होती है, 100% वेरिफिकेशन भी होती है, बजट में प्रावधान भी होता है, ई टेंडरिंग भी होती है, और एक रुपया जो ऑडिट जो है, जो कभी नहीं होता था, वो भी करने का प्रावधान किया, तो हमारी सरकार ने करने का प्रावधान किया है सर। और जो बातें यहां पर कही गई कि ऑफिसर्स को काम करने का आइडिया नहीं कि यूटी में कैसे काम किया जाता है। सर, यहां भारत में एक पार्टी की सरकार बनती, फिर दूसरी की बनती, हर राज्य में अधिकारियों को सब पता है सर कैसे काम करना है। ये वही अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों में भी यूपीए के समय काम करते थे,
उस समय लाखों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन यही अधिकारी हमारी सरकार में आए तो एनडीए की सरकार में 1 रुपए का घोटाला पिछले 6 वर्षों में नहीं होने दिया सर। ये अंतर है। और यहीं पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो कहा जाता है कि पता नहीं, तो मैं यही जो मैंने इससे पहले भी कहा कि किस तरह से बजटरी प्रोविजन करनी है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, टेक्निकल प्रावधान उसके करने हैं, ये सब होने शुरू हो गए सर। ई टेंडरिंग होनी शुरू हो गई। यही वो अधिकारी हैं जो पहले नहीं करते थे, लेकिन आज करवाने वाले आगे, काम करवाने वाले आगे, तो ये करना शुरू कर दिया है। यही अंतर है दो सरकारों के काम करने का सर। सर यही नहीं, अब तो जो बाकी सिस्टम्स हमने वो भी बनाए हैं। कंसोलिडेटेड फंड यूनियन टेरिटरी का वो बना दिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ यूटी बना दिया, डेलीगेशन ऑफ पावर्स कर दी सर, जीएफआर कर दिया, प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन सर, गुड्स हो, सर्विसेज हो या वर्क्स हो, इसके लिए भी हमने करके दिए हैं सर। राज्य के नुकसान की बात गुलाम नबी जी ने कही, मैं उनको कहना चाहता हूं आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए राज्य के नुकसान की, हम नहीं होने दे रहे। और मैं आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं, क्योंकि वो बगैर आंकड़ों के बात कर रहे थे, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, मैक्रो डेटा जो कहता है वो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जीएसटी ग्रोथ जो है, अगर मैं फरवरी महीने के लिए तो 13% ज्यादा है, एक्साइज ग्रोथ 7.5% ज्यादा है सर, मोटर स्पिरिट टैक्स जो है 4% जाता है, स्टैंप ड्यूटी 60% जाता है सर, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन और एटीएम भी एट पार है सर, और एप्पल एक्सपोर्ट भी एट पार है लास्ट ईयर के मुकाबले। और स्टेट की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है सर, उसकी भी मैं बात करूं तो पिछले साल के बराबर ही आएगी, जहां की दुनिया भर की अर्थव्यवस्था 3.8% से कम होकर 2.9% रह गई। जम्मू कश्मीर में आपको वैसी कमी आती नहीं दिखी, बल्कि एट पार या उससे ज़्यादा ही नज़र आ रही है। ये भी सब संभव हुआ क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद वहाँ के सभी अधिकारियों ने दिल लगाकर काम किया है, ईमानदारी के साथ काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। सो किसी तरह का नुकसान मैक्रो टर्म्स में नज़र नहीं आता है सर, चाहे वो शॉल्स हो, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो या बाकी एक्सपोर्ट्स हो, वो भी बड़े ही हैं सर, उसमें कोई कमी नहीं आई। गुलाम नबी जी ने बात कही कि नौकरियों की, मुझे लगता है अभी तक भी उन्होंने पुराने ही आंकड़े पकड़ कर रखे हैं, करंट आंकड़े बताए नहीं सर। सर जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया था और एम्प्लॉयमेंट का जो सेकंड ट्रांच था सर, उसमें जो 3000 पोस्ट निकलनी थी, उसमें से 1781 पोस्ट भरने की प्रक्रिया को खत्म भी कर चुके हैं, और अगली जो रिक्रूटमेंट है सर 1219 को, उसको भी एक्सपेडाइट करने का काम हमने शुरू कर दिया है सर। कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार देने का काम, और विशेष तौर पर कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन की बात जो कहते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा सर। सर ट्रांजिट अकोमोडेशन की जो बात कही सर, गवर्नमेंट ने इस दिशा में भी काम किया है। जो 6000 फ्लैट जो कंस्ट्रक्शन करने थे युवाओं के लिए सर, अब तक जो ड्वेलिंग यूनिट थे हमने लगभग 865 बनाकर तैयार कर दिए हैं, 208 और अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे। और भी सर अगर मैं कुछ बातें आपके सामने कहूं सर, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की बात मुझे लगता था आदरणीय गुलाम नबी जी करेंगे। सर क्या होता था ये समझना सर बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है। जम्मू कश्मीर के पास पैसा तो जाता था, लेकिन लद्दाख को क्या मिलता था सर? लद्दाख को मात्र 1500 करोड़ रुपया मिलता था सर, उसमें से भी कुल 600 करोड़ तक ही खर्च हो पाते थे। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने पिछले बजट के लिए भी सर 2019 के लिए भी इन डिमांड फॉर ग्रांट्स में 5754 करोड़ रुपए का प्रावधान लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के लिए किया है सर। और आने वाले साल के लिए भी 2020-21 के बजट के लिए हमने 5950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है सर। यह भी लद्दाख के लिए किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र ने प्रावधान करके दिया है सर। 2019-20 में अगर देखा जाए सर 88,911 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान था सर जम्मू कश्मीर के लिए। सर ये इतिहास है कि अनुच्छेद 370-35 से खत्म होने के बाद इस बार का बजट
1 लाख करोड़ पार किया है जम्मू कश्मीर के लिए, तो सर ये करके दिया है, ये भी ऐतिहासिक कदम हमने उठाकर दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक संबंधी 4 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित करके लौटा दिया गया। लोकसभा में ये पहले ही पारित हो चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विनियोग विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आर्थिक बदलाव के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर में भी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है और राज्य विकास की ओर अग्रसर है। संसद संवाद के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे लोकहित की किसी अन्य अहम चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।